universe is reversible. So if a process is not reversible, then reversible engine is only a idealization. Similarly, we are discussing the various concepts which based on the various assumption. Scientists perform experiment, and based on the experimental observation, they give some mathematical expression. So the Clausius inequality is also a mathematical representation of the concept. So Clausius, which give the Clausius statement, when doing research, जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तो उनने ऑब्जर्व किया इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे फाउंड अ इनइक्वालिटी. बार बार एक इनइक्वालिटी निकल के आ रही है. जैसे when they compare the reversible and irreversible engine, then they found a inequality. What is that inequality? This inequality told you that efficiency of reversible engine, if we are talking about reversible engine, then this efficiency of reversible engine is always greater than efficiency of irreversible engine. So there is a inequality, and we can also write this as W upon QH, and this W is the work produced by the reversible engine, which is greater than the work produced by the irreversible engine divided by QH. So this is a inequality. Similarly, they found the another inequality which is known as Clausius inequality. So it was first stated by German scientist RJE Clausius. तो जो Clausius scientist थे उनने ये inequality दी थी, and in this inequality they state that the cyclic integral of dq by t is always less than or equal to 0. तो जब क्लॉसिस अपनी स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, दे फाउंड एक टर्म dq by t आ रही है, और जो हमेशा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू 0 है. तो जो ये dq by t की टर्म है, इसका जब साइक्लिक इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये ऑलवेज लेस देन 0 या 0 मिलती है. जो ये सिंबल है इंटीग्रेशन फाई, ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये इंटीग्रेशन है ये परफॉर्म किया गया है ओवर द एंटायर साइकिल. सो वन थिंग you should note that this is for a cycle. We are talking about a cycle. So when we are talking about a cycle, for the whole cycle, the cyclic integral of dq by t is always equal to 0 or less than 0. This dq by t, so dq is the amount of heat transfer during a process. तो मान लीजिए साइकिल है कोई, in a cycle we know cycle is defined as series of processes. तो different processes होंगी. In the process, dq by t, the rate of heat, the amount of heat transfer divided by its temperature. If we do the algebraic sum, it is always equal to 0 or less than 0. Okay, so this is the observation by the Clausius scientist, and this inequality is known as Clausius inequality. यहाँ तक क्लियर? ओके, दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल साइकिल. सो ये जो इनइक्वालिटी है ये सारी साइकिल्स के लिए वैलिड है, वेदर इट इज रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल. तो कोई सी भी साइकिल हो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये स्टेटमेंट वैलिड है. When we divide specifically for the reversible cycle and irreversible cycle, so first for the reversible cycle, the cyclic integration of dq by t is equal to 0. अगर हम कोई हमारे पास रिवर्सिबल हीट इंजन है या रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, चाहे रिवर्सिबल हीट पंप है, if we do cyclic integral of dq by t, we will get 0. And if it is a reversible cycle, irreversible cycle means actual cycle. All the actual cycles are irreversible. So if we perform the same cyclic integration of dq by t for the irreversible cycle, it is always less than 0. Now, in the exam, examiner asked to prove Clausius inequality
for the reversible and irreversible cycle. अगर वो आपसे सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, you have to write this expression, you have to write this statement. It states that the cyclic integration of dq by t is always less than or equal to 0, and then this. Okay, and you can also explain for the reversible cycle it is 0, and for the irreversible cycle it is less than 0. That's all. But if the question comes in the 10 number or 5 number, you have to prove this cyclic integration of dq by t equals to 0 for the reversible process, and for the irreversible process it is less than 0. So in this lecture we will prove the Clausius inequality. Okay, so are you ready? So you have to bring a copy and pen with you. ठीक है, एक कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, और साथ साथ जो जो मैं कर रहा हूं वो ड्राइव करते हुए चलिए, तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में. जस्ट वेट अ मिनट. Okay, so now we know for the reversible cycle, the cyclic integration of dq by t is equal to 0. तो साइक्लिक कोई भी रिवर्सिबल साइकिल होगी उसके लिए जो ये dq by t है ये 0 होगा. ये हमको प्रूफ करना है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर अ reversible heat engine. So this heat engine is a reversible heat engine. It means it's a Carnot heat engine and all processes are reversible. It means this engine is a reversible process. This heat engine work between the two temperature limit TH and TL. So TH, high temperature reservoir, act as a source which transfer heat to the engine. तो किसी भी heat engine को जो heat provide कर रहा है वो उसका source है, वो high temperature reservoir है. And the engine reject heat to the low temperature reservoir which is sink at a temperature TL. तो TL पे heat reject हो रही है QL, and this engine is generating W amount of net work. तो W amount का net work produce हो रहा है. Okay, listen carefully. Now, according to the Clausius inequality, we have to perform cyclic integration of dq by t. So in the heat engine we have 4 processes. First one is isothermal heat addition. Second one is reversible adiabatic expansion. Third process isothermal compression, and fourth process is reversible adiabatic compression. So 2 processes are isothermal and 2 processes are reversible adiabatic, and we know in the reversible adiabatic process heat transfer is 0. That is clear or not? Yes, sir. Clear हुई? तो it means only 2 process, सिर्फ 2 process में ही heat transfer हो रहा है. It means जब एक heat addition हो रहा है isothermal process में, और जब एक isothermal process में heat rejection हो रहा है. सिर्फ 2 ही process में heat addition हो रहा है, और नहीं 2 ही process में heat transfer हो रहा है. The heat transferred to the heat engine is QH, and heat rejected by the engine is QL. And we know heat transfer to the system is always positive, and heat transfer by the system to the surrounding is always negative. Okay, very good. So we have to perform the algebraic sum. So now we are performing the algebraic sum for the reversible cycle dq by t. So the cyclic integration dq by t. So in the first process the heat transfer dq कितना है? QH. So QH amount is transferred to the engine, QH upon TH, and from which temperature? TH. Temperature TH से transfer हो रही थी QH, so we can write QH upon TH. Plus we are doing the algebraic sum. So when we are doing algebraic sum, we are placing the plus. Now the QL heat is rejected by the engine or by the system. तो जब heat reject हो रही है from the engine, it has a negative sign. So it is minus QL, and we can also write TL upon TL. So we have the expression dq cyclic integration of dq by t equals to QH by TH plus QL minus QL upon TH. If we simplify this, we can write cyclic integration of dq by t is equal to QH upon TH minus QL upon TL. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. Okay, so you also know when our cycle is a reversible cycle. So we know QH upon
QH upon QL, this ratio QH upon QL for which cycle? For reversible cycle. This ratio is equal to what? TH upon Ye TL. TH upon TL. Very good. We know this expression. Okay, that's fine. Okay, let's see. So this is our equation number 1. Now, for the reversible cycle, we know QL upon QH equals to TL upon TH, or we can write QH upon QL is equal to TH upon TL. कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है. Okay, we can rearrange the term and we can write this as QL upon TL. So QL इस TL को इधर भेज दिया और इस QH को इधर भेज दिया. So we will get QL upon TL is equal to QH upon TH. These two terms are equal. Clear? That is clear or not? Yes, sir. We can write it Yes, for the sir. reversible cycle. Okay. Yes, sir. Now observe the equation number 1. Observe this equation number 1. What is equation number 1? QH upon TH minus QL upon TL. So this term is equal to this term from this equation. ये QH upon TH का रेशियो किसके बराबर है? QL upon TL के बराबर है. दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं. So you will get integration of del Q by T is equal to 0. 0. Okay, so whenever there is a question, prove the Clausius inequality for the reversible cycle, you have to write consider a heat engine which is a reversible heat engine and working between the TH and temperature limit TH and TL and transferring heat QH and rejecting heat QL and producing work W. So for the cycle we can write Clausius inequality is equal to dq by T equals to QH upon TH plus minus QL upon TL, and by simplifying it we will get QH upon TH minus QL upon TL. For the reversible cycle we can write QL upon QH equals to TL upon TH, and these two terms can be rearranged like that, QL upon TL equals to QH upon QL. So these two terms are equal, so we will get integration of dq by T for a reversible cycle is equal to 0. Hence we proved the Clausius inequality for the reversible cycle. सबको क्लियर है ये चीज सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now let's move to the next part, that is the Clausius inequality for the irreversible cycle. For the irreversible cycle, according to the Clausius inequality, the cyclic integration of dq by T for the irreversible cycle should be less than 0. तो 0 से छोटा होना चाहिए. अब हाउ वी प्रूफ दैट? ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करना देखिए. कंसीडर 2 हीट इंजन. तो अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ एक हीट इंजन लिया था. अब दूसरे वाले में पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? वी कंसीडर 2 इंजन. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है अगर एक बार आप सुन लें तो. अदरवाइज अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से दे रखा है. तो 2 हीट इंजन कंसीडर करने हैं. एक फर्स्ट वन इज E1 एंड सेकंड वन इज E2, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक. यानी कि 2 हमने हीट इंजन लिए हैं. पहला हीट इंजन हमारा E1 है और दूसरा E2 है नाम. ठीक है, एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम टेम्परेचर लिमिट. Okay, so we have considered 2 heat engine, E1 and E2, working between the same temperature source and sink. So our source is QH, TH, and our sink is TL, and 2 heat engine are E1 and E2. ये चीज क्लियर सबको? कोई डाउट? No, sir. Okay. Now consider that E1 is a reversible and E2 is a irreversible. तो जो हमारा इंजन है E1 वो क्या है? रिवर्सिबल इंजन है, और जो E2 है वो इरिवर्सिबल इंजन है. सो वी हैव कंसीडर्ड 2 इंजन. फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल. तो जो इंजन है रिवर्सिबल वो वर्क प्रोड्यूस करेगा रिवर्सिबल वर्क, और जो इंजन है वो जो वर्क प्रोड्यूस करेगा उसको हम लिख सकते हैं W इरिवर्सिबल, बिकॉज दिस इंजन इज इरिवर्सिबल इंजन. ओके, नाउ QH heat is supply for both engine because the source temperature is fixed. TH
तो जो हीट सप्लाई हो रही है QH दोनों इंजनों को बराबर हो रही है। तो द हीट सप्लाई टू द इंजन 1 इज QH एंड हीट सप्लाई टू द इंजन 2 इज QH। दोनों को बराबर हीट सप्लाई हो रही है। सो वी आर कंसिडरिंग दैट, ये सब हम मान रहे हैं कि हमने क्या करा, दो सोर्स माने TH और TL, है ना, नहीं सोर्स और सिंक माना TH एंड TL, दो इंजन माने E1 और E2, फर्स्ट वन को माना रिवर्सिबल, सेकंड वन को माना इरिवर्सिबल, और दोनों इंजनों को सेम हीट सप्लाई हो रही है फ्रॉम द सेम टेम्परेचर सोर्स। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now the QL reversible and QL irreversible is the heat rejected by engine E1 and E2 respectively. अब ठीक है, इनको QH and QH heat supply होती है, but the heat amount of heat rejected is QL reversible and QL irreversible. तो जो फर्स्ट इंजन है दैट इज रिवर्सिबल इंजन, जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो QL रिवर्सिबल है, और जो हीट इंजन 2 है जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो QL इरिवर्सिबल है। यहां तक सब क्लियर? यहां तक सिर्फ जो भी हमने कंसीडर सब चीजें कंसीडर करी हैं टू सॉल्व टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। ओके, नाउ we know for the irreversible cycle we have to prove dq by t cyclic integration of dq by t should be less than 0. okay, so QL जो अमाउंट है वो हीट रिजेक्टेड है रिवर्सिबल इंजन की, और जो QL इरिवर्सिबल है वो हीट रिजेक्टेड है किससे? इरिवर्सिबल इंजन से। कैन यू टेल मी विच इंजन हैज हायर एफिशिएंसी? किस इंजन की एफिशिएंसी हायर होगी? E1 की एफिशिएंसी हायर। E1. So efficiency of reversible engine is greater than the efficiency of reversible engine. So ये कहां से पता चला हमको? कार्नोट थ्योरम से। ओके, तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा वो ज्यादा एफिशिएंसी होगी किससे? इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल इंजन व्हेन दे आर वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक। ओके, what you can write this efficiency? Is efficiency, what is efficiency? What is efficiency of heat engine? Output of Output upon input. And what is the Input. output W and what is the input Q? Okay, Q. so we can write the efficiency of reversible engine is W reversible divided by QH. W reversible by QH. And what is the efficiency of irreversible engine? W irreversible by QH. So QH is the heat supply, so this is the output and this is the input. So output है W reversible and इसका output है W irreversible. अब ये बताइए विच इंजन इज प्रोड्यूसिंग मोर वर्क? कौन सा इंजन ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा? द अमाउंट ऑफ QS तो दोनों के लिए सेम है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क किस में प्रोड्यूस हो रहा होगा? रिवर्सिबल इंजन में कि इरिवर्सिबल इंजन? irreversible. Reversible engine. So we can say the work produced by the reversible engine is more in comparison to the work produced by the irreversible engine. अब मुझे ये चीज बताइए, कितने % बच्चे ये चीज समझ चुके हैं कि ये होगा? The amount of heat rejected by the reversible engine is less than amount of heat rejected by irreversible engine. ये चीज कितनों के समझ में आ चुकी है अपने आप ही? जिसकी समझ में आ गई है वो बताएगा भी मुझे कैसे आया करके। बताइए, ये चीज पे कितने लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होगा? Yes, sir. करण और कौन एग्री करता है इस चीज पे? सर मैं भी एग्री। ओके, और 2 स्टूडेंट और, यानी बाकियों के समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, दिव्यांशु आप बताओ बेटा, ये क्यों होगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द रिवर्सिबल इंजन इज लेस देन हीट रिजेक्टेड बाय द इरिवर्सिबल इंजन। क्यों होगा बताइए? क्योंकि पहले वाले इंजन में E1 में जो वर्क रिवर्सिबल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब जो QH जितना एनर्जी जा रही है ज्यादा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें QL कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल है। Okay, very good. So in the reversible engine we are producing more work, so the amount of QH is same. What we write? W is equal to QH minus QL. अगर W ज्यादा है इट मींस किसकी वैल्यू कम होनी चाहिए? QL की वैल्यू कम होनी चाहिए। जब ये वैल्यू कम होगी तभी QH से माइनस करके ज्यादा चीज आएगी। तो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल इंजन लेस हीट इज रिजेक्टेड बिकॉज द अगर मान लीजिए यहां से 100 आई
और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 60, तो रिजेक्ट कितना हुआ 40। और सिमिलरली मान लीजिए यहाँ से 100 किलो जूल हीट आई और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 50 ही, क्योंकि ये कम कर रहा है। ओके, ये 60 कर रहा था, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है यहाँ इस केस में कितनी है 50। इट मींस द हीट रिजेक्टेड बाय द irreversible engine is more in comparison to the heat rejected by the reversible engine। ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव टू इंजन, reversible engine and irreversible engine। okay, so first we apply the Clausius inequality for the reversible engine। so apply the reversible for the reversible engine, for the reversible engine E1, according to the Clausius inequality, dq by t equals to qh upon th plus minus ql reversible, कितनी हीट रिजेक्ट करी ql reversible डिवाइड बाय tl। ओके, ये चीज क्लियर है? कैसे लिखी? ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ वी नो फॉर द रिवर्सिबल इंजन, QH अपॉन TH इक्वल्स टू QL रिवर्सिबल अपॉन TL। ये चीज होगी? यस सर। यस सर। होगी। इट मींस द साइक्लिक इंटीग्रेशन dq by t फॉर द रिवर्सिबल साइकिल और रिवर्सिबल इंजन E1 इज इक्वल टू 0। ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके थे, हमने दोबारा प्रूफ कर दिया। ओके, नाउ फॉर द इरिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल इंजन E2 वी हैव टू राइट, वी कंसीडर dq by t इक्वल्स टू 0। हमने माना कि 0 है, ठीक है, तो क्या होगा QH अपॉन TH माइनस QL इरिवर्सिबल divided by TL। okay, we can simplify it, we will get, okay sorry, so we have this expression। ये expression clear है सबको? ये expression clear है? यस सर। okay, so can you put the value of QH upon TH from this expression? यहां पर अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा बताइए? 0 आ जाएगा। हम रखेंगे QL रिवर्सिबल डिवाइड बाय TL। बताइए क्या आएगा? सर ये तो इरिवर्सिबल साइकिल है ना? हाँ बेटा, इरिवर्सिबल साइकिल है, बट दिस द रेशियो QH अपॉन TS, तो QH तो हीट सेम सप्लाई सेम हो रही थी, यस सर। है ना, और TH भी क्या था, सेम ही है। क्लियर? सर ये आएगा QL रिवर्सिबल अपॉन TL। We can put the value QH upon TH is equal to QL reversible upon TL। इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यस सर। Okay, so when we put the value of QH upon TH, we will get cyclic integration of dq by t equals to QL reversible divided by TL, because the value QH upon TH is equal to QL reversible upon TL। इसके बराबर रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। क्लियर बेटा? कंफ्यूजन है अभी भी? क्लियर है सर। यस सर। Okay, now we have put the value cyclic integration of dq by t is equal to QL reversible minus QL irreversible by TL। क्योंकि दोनों के अपॉन में क्या था, TL था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या आ गया? TL QL reversible minus QL irreversible by TL। okay, now you know when two heat engine working between the same temperature limit and one is reversible and other is irreversible, then the amount of heat rejected by the reversible engine is less than the heat rejected by the irreversible engine। ये चीज अभी हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? यस सर। So it means the heat rejected by the QL irreversible is greater than QL reversible। It means the value dq by t is negative। इन दोनों में से कौन बड़ा है? QL irreversible। ये क्या है? माइनस। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव।
नेगेटिव आएगी। अगर कोई चीज नेगेटिव है इसका मतलब वो 0 से छोटी है कि बड़ी है? छोटी है सर। यानी कि जो ये वैल्यू है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी नेगेटिव है, इट मींस द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अभी सर। आ गई सर। Okay, so we have proved that when our engine or cycle is irreversible cycle, the cyclic integration of dq by t is less than 0। एक बार फिर से रिपीट करूं डेरिवेशन या क्लियर हो गया है? ओवरव्यू सा दे दो सर बस ऐसी। हाँ बेटा, वो एक मिनट, यस, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। So what we have done, we have considered two engine E1 and E2. The heat is supply for the both engine is QH from the temperature TH, and both engine rejecting heat to the low temperature source TL. The heat rejected by the first engine, which is reversible, is QL reversible, and heat rejected by engine 2 is QL irreversible. Okay, so we know the efficiency of reversible engine is more than the irreversible engine. If we simplify this efficiency, we will get W reversible upon QH is greater than W irreversible by QH. It means the work produced by the reversible engine is more than the work produced by the irreversible engine. Okay, and from this we can conclude that the heat rejected by the reversible cycle is less than the irreversible cycle because it converting more part of heat into the useful work। तो ये ज्यादा वर्क अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब ये कम हीट रिजेक्ट करेगा, और ये कम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा। अगर 100 दोनों को हीट जा रही थी और ये 60 प्रोड्यूस कर रहा था, ये 50 कर रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट रिजेक्ट जो है वो कम करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से अगर 100 आ रही है, ये 60 कर रहा था, इट मींस दिस मस्ट बी 40। सिमिलरली यहां से अगर 100 आ रही है और ये 50 ही कन्वर्ट कर रहा है, तो जो रिमेनिंग 50 है वो मस्ट बी रिजेक्टेड टू द एनवायरनमेंट और लो टेम्परेचर सिंक। इट मींस जो हीट रिजेक्टेड है रिवर्सिबल साइकिल की वो कम होती है। ओके, देन वी अप्लाई द क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर द रिवर्सिबल इंजन E1। सो इट इज QH अपॉन TH, क्योंकि हीट सप्लाई QH हो रही थी, टेम्परेचर सोर्स TH था, और यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो QL रिवर्सिबल हो रही है अपॉन TL। एंड वी नो फॉर द रिवर्सिबल साइकिल दिस रेशियो QH अपॉन QL अपॉन रिवर्सिबल इज इक्वल टू TH अपॉन TL। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्टली लिख लिया है QH अपॉन TH इक्वल्स टू QL रिवर्सिबल अपॉन TL। ओके, सो द साइक्लिक इंटीग्रेशन Q dQ by T इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये चीज 0 होगी। अब बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल साइकिल की, जिसको हमको मेनली ड्राइव करना है। सो फॉर द इरिवर्सिबल साइकिल वी टेक द साइक्लिक इंटीग्रेशन dQ by T। dQ by T, अब इसको कितनी हीट सप्लाई हो रही थी, QH किस सोर्स से हो रही थी, TH, तो QH अपॉन TH प्लस कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, माइनस QL इरिवर्सिबल, तो माइनस QL इरिवर्सिबल डिवाइड बाय TL, तो TL लिख लिया। अब इसको QH अपॉन TH की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, QL रिवर्सिबल डिवाइड बाय TL, तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के बेस में TL है तो TL सिंपली आ जाएगा, तो QL रिवर्सिबल माइनस QL इरिवर्सिबल डिवाइड बाय TL। वी नो द QL इरिवर्सिबल इज मोर देन द QL रिवर्सिबल, तो ये क्वांटिटी ज्यादा है इस क्वांटिटी से, यानी कि जब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जो dQ by T की वैल्यू है वो नेगेटिव है। किसी भी चीज की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस इट इज लेस देन 0। सो वी कैन सिंपली राइट द साइक्लिक इंटीग्रेशन dQ by T for a irreversible cycle is less than 0. Hence we prove the Clausius inequality for the irreversible cycle. Clear beta? Yes sir. Okay, now I am giving you सर a जैसे quiz. आपने Yes, हाँ बताइए बेटा। सर आपने कहा था कि 5 नंबर में आएगा, तो हमें पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा ये? हाँ तो बेटा छोटा ही तो है वो, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है उसमें हाँ, प्रूफ करने में, उसको मतलब 2 मिनट लगेंगे। हाँ सर मगर पहला अगर वाला आपसे मान लीजिए,
सर Yes. जैसे पहला वाला डेरिवेशन है तो उसे तो ना भी करें तो मतलब सेकंड में तो ऑलरेडी आ रहा है ना। देखिए कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ किसमें, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको सेकंड वाला एक्सप्लेन करता है एक ही बार में, तो वो चीज प्रूफ नहीं हो पाती, मतलब वो चीज आप समझ नहीं पाते। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सर मतलब उससे ही पेपर में एक्सप्लेन, करने के लिए। पेपर में बेटा मैं तो कहूंगा कि दोनों ही कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ओके सर। एक्सप्लेनेशन इजी होगा आपका। ठीक है, ज्यादा अगर उसको आप पेपर पे लिखेंगे तो ज्यादा चीज है नहीं उसमें लिखने के लिए कुछ भी, है यस ना। सर आप यस। इजीली इस चीज को कर सकते हैं। तो बेटा एक क्विज दी है मैंने आपको, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही क्विज कीजिएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड क्विज है। यू हैव 2 मिनट्स टाइम, आराम से पढ़िए क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, आराम से पढ़िए और उनका आंसर कीजिए। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने किया है अभी तक, फटाफट कीजिए। इसका मतलब बाकी लोग क्लास में एक्टिव नहीं है। ईशान, ईशान गौतम, ईशान गौतम, बेटा एब्सेंट लग जाएगी आपकी आज। हर्ष कुमार, यस सर। कर दिया बेटा आपने क्विज? कर है सर। करो फटाफट, सबमिट करो। ओके, क्लास आगे बढ़ाते हैं, जिसने कर लिया कर लिया। So we have proof Clausius inequality for the reversible and irreversible cycle. So in the starting of the second unit, I have told you that the second law of thermodynamics is a directional and it gives the direction of the process with the help of a property entropy. Okay, and
आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा एंट्रोपी एंट्रोपी मेरे मुंह से. सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रॉपर्टी एंट्रोपी. ओके, so each law of thermodynamics give you a property. So zeroth law of thermodynamics give you the property which is known as Temperature. temperature. And what is the property which comes from first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ से कौन सी प्रॉपर्टी मिली थी? एंथैल्पी. हाँ, एनर्जी और इंटरनल एनर्जी. We have also proved that energy is a property of a function, a property of the system, or internal energy is the property of system, thermodynamic property. Okay, so from the first law of thermodynamics, we get the property which is energy or internal energy. And from the second law of thermodynamics, we get a property which is known as entropy. Okay, so जैसे मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया कि क्लॉसियस जो है कंटिन्यूअसली कर रहे थे इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड क्लॉसियस रियलाइज्ड इन 1865 that he discovered a new thermodynamic property and he chose the name this property entropy. तो क्लॉसियस ही किस पे काम कर रहे थे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. दे गिव द क्लॉसियस स्टेटमेंट which is valid for refrigerator and heat pump, and after that they give the Clausius inequality, and they realize in 1865 that they found a new property and he give the property name entropy. Okay, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी ढूंढी और उसका नाम रखा एंट्रोपी. एंट्रोपी कैपिटल एस, entropy capital S is an extensive property of a system and sometimes is referred to as total entropy and has the unit kilojoule per Kelvin or kilojoule per degree centigrade. Okay, okay, so entropy को हम डिनोट करते हैं कैपिटल S से. ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? टोटल एंट्रोपी भी बोलते हैं. चाहे आप टोटल एंट्रोपी बोलिए चाहे एंट्रोपी बोलिए, सेम मीनिंग है. डिनोट होगा कैपिटल एस से, यूनिट होगी किलो जूल पर केल्विन. ओके, एंड इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंट्रोपी पर यूनिट मास, एंट्रोपी पर यूनिट मास डेजिग्नेटेड विद स्मॉल एस and it is known as specific entropy. So whenever we divide entropy with mass, we will get specific entropy, and this is denoted by small s, and it is a intensive property and has unit of kilojoule per kg Kelvin. So the unit of entropy is kilojoule per Kelvin, but when we talk about specific entropy, it is kilojoule per kg Kelvin. Okay, so entropy is an extensive property. It means it does not depend upon the, it depend upon or does not depend upon the mass. Extensive properties are those Do not Sir, properties. depend upon mass. Do not depend. Karan, extensive do not- properties are depend upon Sir, the do mass or not not? depend. Sir, do not Do depend not on mass. depend upon the mass. Or the intensive property and intensive properties do not depend upon the Depend on mass. mass. Okay, so it means the entropy or total entropy is a extensive property which depend upon the mass, but the specific entropy which is denoted by small s. सर आपकी आवाज कट के आ रही है. बेटा किसी का माइक खुला होगा. Now it is clear. Now it is clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा आप सब लोग अपने. तो जो एंट्रोपी होगी, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी? मास पे डिपेंड नहीं करेगी. ओके, नाउ अब ये तो हमने समझ लिया कि एंट्रोपी क्या है. एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो क्लॉसियस ने निकाली थी, उसका नाम एंट्रोपी रखा. वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है
और अगर हम उसको डिवाइड बाय मास करें तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसकी यूनिट क्या होती है, सिंबल क्या होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बट एंट्रोपी होती क्या है अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। अब फर्स्ट थिंग, this is it is clear that if it is and it is property, it is thermodynamic property, then it has the fixed value at a state, because property क्या होती है, property वही होती है जिनको हम define कर सकें किसी state पे। so it means अगर हम entropy की बात कर रहे हैं तो उसकी किसी fixed point पे हम क्या कर सकते हैं, value को denote कर सकते हैं। like if we have a TS डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, ये आपने डायग्राम पहले भी देखा होगा। तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बना रहे हैं और किसी पॉइंट पे हम स्टेट फिक्स कर रहे हैं, दिस इज स्टेट 1, इट मींस एट दिस पॉइंट टेम्परेचर इज फिक्स एंड एंट्रोपी इज आल्सो फिक्स। सिमिलरली अगर हमारी स्टेट 2 हो जाती है तो इसकी क्या होगी, वैल्यू फिक्स होगी यहाँ पर 2 पॉइंट पर। जिस तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं उसी तरीके से हम इसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस द एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड हैज फिक्स वैल्यू एट अ गिवन स्टेट। तो किसी भी स्टेट पे जो गिवन हेलो सर। समझते हैं। यस, आवाज आ रही है? सर अभी आवाज कट नहीं रही आई थी थी। सर, जो आपने बोला था अभी कुछ देर पहले। कट गया अभी। एक्चुअली मेरे फोन पे कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से हो गया। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, वी नो द प्रॉपर्टी, ओके। जैसे लाइक वी आर डिस्कसिंग टेम्परेचर, सो वी नो व्हाट इज टेम्परेचर। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर, वी नो द प्रेशर, ओके। सिमिलरली वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, सो वी नो व्हाट आर दे, है ना, कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। वी नो what is the meaning of that property. But when we are talking about enthalpy, can you define enthalpy? आपने कभी देखी है एंथैल्पी? कभी एंथैल्पी की रीडिंग देखी है? आपने टेम्परेचर की रीडिंग देखी होगी, आपने आपने प्रेशर की रीडिंग देखी होगी, आपने डेंसिटी देखी होगी, आपने मास देखा होगा कि कहीं पर हाँ रीडिंग आ रही है, आप उसको फिजिकली फील कर पा रहे हो कि क्या होती है। बट कैन यू फील एंथैल्पी? व्हाट इज एंथैल्पी? Yes or no? Are you agree with me or नो not? सर। नो सर। Agree or not? सर Agree कर एग्री। रहे हो, नहीं कर रहे हो? Okay. Similarly, because enthalpy, we cannot feel enthalpy, we have not seen enthalpy, we have not observed enthalpy, because enthalpy is the property which is associated with the molecules, with the molecular level, microscopic property. Similarly, entropy is the property which is associated with the microscopic nature of the matter. It means what is the behavior of the molecule, it depends upon that. Similarly, enthalpy is also a property which is associated in the molecular level. So when the property is associated with the molecular level, तो आपको ऐसे नहीं कि जो आप डेली लाइफ में फील कर रहे हो कि हाँ टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है ना, ये चीज आप जैसे रियल लाइफ में फील कर पाते हो, आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को फील नहीं कर सकते, ओके। सो एंट्रोपी इज आल्सो अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ रियल लाइफ प्रॉपर्टी। जो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो, जो बचपन से आप सुनते देखते आ रहे हो, वो चीज नहीं है। अब हाउ वी डिफाइन एंट्रोपी? एंट्रोपी कैन बी व्यूड एज measure of molecular disorder or molecular randomness. So in a substance, if the entropy is high, it means molecular जो molecules हैं उनमें disorder है। disorder मतलब आप उनका predict नहीं कर सकते हो कि molecule किस हिसाब से behave कर रहे हैं, okay। molecular में क्या है, randomness। so entropy in a single term or in a simple definition, it is a randomness of the molecule। तो जो molecule की जितनी randomness है वही उसकी entropy दिखा रहा है। जितनी ज्यादा randomness होगी उतने ज्यादा molecule highly फंक्शन कर रहे होंगे, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, ओके। इफ द एंट्रोपी इज लेस, इट मींस द रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लो। एट अ जीरो एंट्रोपी, द मॉलिक्यूल्स आर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट फ्रीज, ओके। तो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा जीरो एंट्रोपी पे और हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एज अ सिस्टम बिकम मोर डिसऑर्डर, जब क्या होगा, कोई सिस्टम में
जो डिसऑर्डरनेस है वो बहुत ज्यादा होगी, तो द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम लेस प्रिडिक्टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है उसको उतनी ही कम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब उसमें ज्यादा डिसऑर्डर होगा, और इस टाइम पे उसकी जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज होगी। जब भी किसी सिस्टम में एंट्रोपी हाई होगी, उसका जो मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो प्रिडिक्ट करनी उतनी ही मुश्किल है। देखिए ये चीज समझना बहुत मुश्किल है कि एंट्रोपी है क्या, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा जिसकी मदद से आप एंट्रोपी को समझ पाएंगे, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रोपी वो आप समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल है विच इज नॉट रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। एंट्रोपी का क्या सिग्निफिकेंस है उस चीज से आपको क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स कंसीडर अ लाइब्रेरी। आपने एक लाइब्रेरी कंसीडर करी, सपोज दिस इज योर लाइब्रेरी, ये आपकी लाइब्रेरी है। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया ऑन थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको एक थर्मोडायनेमिक्स पे असाइनमेंट दिया जिसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 1 2 3 ऐसे करके 10 क्वेश्चंस थे, एंड दिस असाइनमेंट कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 5 यूनिट, पांचों यूनिट से आपको क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। बट आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना है, तो आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, इन द लाइब्रेरी देयर आर डिफरेंट सेक्शन, लाइक फर्स्ट सेक्शन में आपको मिलेगा बीसीए की किताब, दूसरे में आपको मिलेगी बीएड किताब, तीसरे में मिलेगी आपको बायोटेक की किताब, और ये वाला सेक्शन है बीटेक का, जो ये बचा हुआ सेक्शन है। इसमें से भी ये वाला सेक्शन है कंप्यूटर साइंस का, ये वाला है सिविल का, ये वाला है मैकेनिकल का। ओके, इन द मैकेनिकल सेक्शन ऑल्सो दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, this is third year, and this is fourth year. So you will go in the second year, and in the second year you will find a book of thermodynamics, है ना। आपको एक थर्मोडायनेमिक्स की बुक मिली, आपको एक वहां पर एक कॉलम मिलेगा जिसमें सारी थर्मोडायनेमिक्स की बुक होंगी, पीके नाग होगी, सेंजिल होगी, डीएस कुमार होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स होंगी। तो आपको यहाँ पर 7-8 बुक मिल गई इस वाले कॉलम में थर्मोडायनेमिक्स की। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिला, दूसरा किसी और बुक में मिला, तीसरा किसी और बुक में मिला, चौथा पांचवा ऐसे करके आपने डिफरेंट बुक्स यूज करके आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया और आप लाइब्रेरी से बाहर आ गए। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? सो इन दिस लाइब्रेरी, व्हाई आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी, because in this library the books are arranged in a proper manner. Books are arranged in a proper manner. It means the entropy of this library is very very low. क्यों है लो? क्योंकि randomness नहीं है, बुक्स अरेंज हैं बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में। लाइक ये वाला जैसे सेक्शन था, मैंने कहा ये बीसीए का या बी फार्मा का है, ये वाला बायोटेक का है, ये वाला बीएड का है, एमसीए का है। तो चीजें प्रॉपरली अरेंज थी, यानी कि वहां पर डिसऑर्डरनेस नहीं था। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेम एग्जांपल है। नाउ दिस इज द लाइब्रेरी अगेन। अब मैं एक और, अब सेम असाइनमेंट आपको करना है, बट लाइब्रेरी आपको कैसी मिली है? एक लाइब्रेरी मिली है जिसमें क्या है, बुक्स मिक्स हैं आपस में। तो यहाँ पर एक बुक इंजीनियरिंग की है, दूसरी किसकी है, दूसरी बी फार्मा की है, तीसरी एमसीए की है। तो ऐसे ही रैंडमली बुक अरेंज है, यहाँ पर कोई बुक कहीं है, सारी बुक मैसअप है। ठीक है, अब आपको ये असाइनमेंट करना है जो आपको 10 क्वेश्चन का दिया था। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डरनेस, चीजें अरेंज नहीं है अपनी ऑर्डर में। यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डरनेस है, सारी बुक्स आपस में मिक्स हैं। एक बुक एमसीए की मिलती है तो दूसरी बी फार्मा की मिलती है, तीसरी कंप्यूटर साइंस की मिलती है, चौथी। अब आपको असाइनमेंट करना है 10 क्वेश्चन अगेन। तो आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स की बुक ढूंढनी पड़ेगी। तो अब आप एंटर करेंगे लाइब्रेरी के अंदर। अब हो सकता है आपको 1 मिनट के अंदर एक बुक मिल जाए और दूसरी बुक ढूंढने में आपको 10 मिनट लगे, चाहे आपको पहली बुक मिलने में 10 मिनट लगे, और आपको पूरी की पूरी 10 बुक या 7-8 बुक जो आपको पहले मिल गई थी वो मिल भी पाए या ना मिल पाए। दैट इज क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। So it means when the entropy of this library is high, जब एंट्रोपी हाई है यानी कि डिसऑर्डरनेस हाई है, रैंडमनेस हाई है, मतलब आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कौन सी बुक कहाँ मिल रही है, तो आपको असाइनमेंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा?
ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली, और आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? पहले ज्यादा मेहनत करनी, पहले वर्क डब्ल्यू ज्यादा करना पड़ रहा था कि अब ज्यादा डब्ल्यू करना पड़ रहा है वर्क? सर सर अब अब ज्यादा करना करना पड़ेगा। अब पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ रहा है। W2 ज्यादा करना पड़ रहा है। इट मीन्स whenever entropy of the system is high, whenever entropy of the system is high, you have to do more work. जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मगर जब एंट्रोपी कम है तो अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकते, ज्यादा वर्क कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। सिमिलरली, अगर आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क प्रोड्यूस क्या है, मतलब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहले वाले में आपको क्या करना पड़ा? आपने ज्यादा कम समय में ज्यादा वर्क किया कि कम वर्क किया पहले पहले वाले में, पहली लाइब्रेरी से जब आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे? यानी कि आपने असाइनमेंट ज्यादा ज्यादा अच्छा असाइनमेंट बनाया पहले वाले में, और जब रेंडमनेस ज्यादा थी तो आपने आपने असाइन, आपको एक ही बुक मिली या दो ही बुक मिली इतनी देर ढूंढ ढूंढ के, तो आपने दो बुक से जो मिला आपने अपना वर्क प्रोड्यूस कर दिया। तो पहले वाले केस में ज्यादा वर्क प्रोड्यूस किया। तो वेन एवर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज लो यू कैन प्रोड्यूस मोर वर्क, और वेन एवर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज वेरी हाई यू कैन प्रोड्यूस लो वर्क। ओके, सो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल टू रिलेट द एंट्रोपी फ्रॉम द रियल लाइफ। ठीक है, एक्चुअल में भी यही है। जैसे जो मॉलिक्यूल का रैंडमनेस है वो डिपेंड उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना वर्क प्रोड्यूस होगा, या हमको कितना काम करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। सो एंट्रोपी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो ऐसा मानता हूं मैं कि अब थोड़ा बहुत आपको एंट्रोपी के बारे में कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एंट्रोपी को हम रियल लाइफ में तो फील कर नहीं सकते। सो इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट इज क्लियर और नॉट? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ओके, अब मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसको फील करते हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, बट एंट्रोपी अगर आपसे पूछे कोई भी कि एंट्रोपी, अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज एंट्रोपी, सो एंट्रोपी इज द measurement of the molecular disorder or randomness of the molecule. It is a microscopic property which is related to the molecular level, which is associated with the molecular level. You cannot feel entropy in the real life because it is the property which is associated with the molecular level. Okay, simply like enthalpy. Now we have to define, now we have to prove। अब मैथमेटिकल प्रूफ भी जरूरी है साथ में, क्योंकि हमने तो ये बोल दिया, मैंने बोल दिया कि एंट्रोपी जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एंड बट हाउ वी डिफाइन, हाउ वी प्रूव that entropy is the property of a system. So what we have done, we consider two reversible cycle. First one 1a 2b1, 1a 2b1, and the another cycle 1a 2c1. So 1a 2c1। ऐसी चीज हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी। एंड कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी? एनर्जी। एनर्जी जब प्रूफ की थी तो हमने सिमिलर एग्जांपल लिया था, या जब हमने प्रूफ किया था कि हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो तब भी हमने ये चीज यूज करी थी। तो हमने दो साइकिल ले ली हैं और दोनों साइकिल हैं रिवर्सिबल साइकिल है। एंड वी नो फॉर द रिवर्सिबल साइकिल व्हाट इज द क्लॉसियस इनइक्वालिटी? इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज इक्वल टू, फॉर द रिवर्सिबल साइकिल, जीरो। बताइए। जीरो। Zero. Okay, so for the reversible cycle dq by t equals to 0. Now for cycle 1a2b1, पहली वाली साइकिल, ये वाली साइकिल, इसके लिए हम अगर ये अप्लाई करें क्लॉसियस इनइक्वालिटी तो क्या कैसे लिखेंगे? सपोज इस जो प्रोसेस है 1a2, इसमें हीट ट्रांसफर हुई है dq और टेम्परेचर था t। ठीक है, तो कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, तो वी कैन राइट लाइक दैट कि dq by t 1a2, ये कोई इसका, इसमें हीट ट्रांसफर होगी dq, और यहाँ पर क्या है t, ये किस वाली प्रोसेस के लिए? 1a2 के लिए। यानी कि ये जो हीट है dq, ये क्या है? dq 1a2, और टेम्परेचर क्या है? 1a2, जो इसमें टेम्परेचर था। तो हमने सिंपली उसको बाहर ले लिया और हमने लिख दिया dq by t 1a2। सिमिलरली हम इस वाली प्रोसेस के लिए 1b1 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2b1 के लिए, 2b1 के लिए dq by t is equal to 2b1 equals to 0।
सो दिस इज द क्लॉसेस इनइक्वालिटी फॉर दिस साइकिल, ऐसी होगी, इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर साइकिल 1A2C1, अभी खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट सुन लीजिए बस। 1A2C1, तो इसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं dq/t 1A2 और ये 2C1, तो 2C1 के लिए dq/t है ना, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। पहली वाली हमारी इक्वेशन 1 थी। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो क्या होगा, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट dq/t 2b1 dq/t 2b1 माइनस dq/t 2c1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में dq/t 2b1 इक्वल्स टू dq/t 2c1 आपस में बराबर है। यानी कि जो dq/t है ये क्या है, एक ये दो डिफरेंट पाथ के लिए सेम रह रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा तेज हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इट मींस इट इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी dq/t। अभी ये जो dq/t है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जब ये इस वाले पाथ और इस वाले पाथ के लिए दोनों के लिए सेम हो रही है, देखिए 2b1, चाहे आप 2b1 से जाइए चाहे आप 2c1 से जाइए, तो dq/t की वैल्यू सेम रह रही है। तो इट मींस इट इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी dq/t। ठीक है, वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एंट्रोपी वाले पॉइंट से इन आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल गिव यू अ न्यू क्विज, एक नई क्विज आपको दे रहा हूं इस लेक्चर की। ठीक है, उसको आप कीजिए